Hello, dear all. In the series of multiple choice questions of chapter 3 of class 10th mathematics, that is pair of linear equations in two variable, this is second part. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज में ये चैप्टर थर्ड जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है का ये सेकंड पार्ट है। कीप वॉचिंग। Class 10th Maths Chapter 3, that is pair of linear equations into variable, that is multiple choice questions part second. मैं BL Sharma. Very important for you, means for the students who have opted standard or basic mathematics for various mathematics olympiads, for various talent sets examination, IIT Foundation, Rajasthan Board, Delhi Board, any other competitive examination. And see here, that is very important, that see here, कैसे हम रेशियो को देख करके 1/a2 b/b2 और c1/c2 को ऑब्जर्व करके वी कैन डिसाइड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, द अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन एंड द कंसिस्टेंसी। सो इस टेबल को आप लर्न कर लीजिएगा। एंड नाउ द क्वेश्चंस आर ऑन योर स्क्रीन। The pair of equations, that is x plus 2y plus 5 is equal to 0 and minus 3x minus 6y plus 1 is equal to 0 है। इस तरह का इनका सॉल्यूशन है, ये बताना पड़ेगा अगर ये दो इक्वेशन ऐसे हैं। Students, we know that we can determine it by using the ratios, and I already discussed with you, मैंने आपके साथ बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूं। फिर से आप देख लीजिएगा कि अगर a1/a2 is not equal to b1/b2 है, तो the lines will be, the graph of the two lines will intersect exactly at one point, means वो lines intersecting lines होंगी। If a1/a2 is b1/b2 is equal to c1/c2 है, तो जो लाइंस होंगी वो दोनों कॉन्स्टेंट लाइंस होगी और इसको कहते हैं हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। And if a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, then the two lines will be parallel. तो इसके लिए हमें ग्राफ पेपर रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और देखिए रेशियो के लिए अब हम यहां से लेंगे a1/a2, that is 1/-3, b1/b2, that is 2/-3, that is also -1/3, that is also -1/3, and now c1/c2 देखेंगे तो that is 5/1. So we can say that a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यहां पे देखिए a1/a2 is -1/3, b1/b2 is also -1/3, but c1/c2, that is 5/1. So we can say a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। आप यहां देखिए इस जगह पे a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2. So a1/a2 is b1/b2 not equal to c1/c2. So the two lines will be parallel lines. So, and if the lines are parallel, there is no solution at all. So we can say there is no solution. जब दो lines parallel होती है कि intersect नहीं करती है तो उनका कोई solution नहीं होता, and the no solution, D is the correct option. So you mark D as the correct option of this question. ये जो टेबल आपके सामने है इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा कि बार बार इस चैप्टर में इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। If a pair of linear equations is consistent, यहाँ पे इसका
ये जो आपकी वर्ड है कंसिस्टेंट का ध्यान दीजिएगा, then their graph lines will be, what kind of their graphical representation will be. कंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई ना कोई सोल्यूशन है, कोई ना कोई सोल्यूशन में दो बातें आती है, इधर इट इज यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। यू सी हियर, यहाँ पे आप देखिएगा, देखिएगा ये जो दो बातें हैं यहाँ पे, यू सी हियर, ये दिस इज कंसिस्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंट। इट मीन्स in their algebraic interpretation can be unique solution or can be infinitely many solutions. So दोनों ही बातें होंगी, the two lines will be intersecting lines और two lines can be coincident lines. So दोनों lines जिनका ग्राफ बनेगा they can be intersecting or coincident lines. So D is the correct option. So mark D as a correct option here. The graph of the linear equation that is x is equal to -4 is aligned parallel to, देखिए linear equations in one variable means two variable always gives a straight line. यहाँ पे अगर इसका जो ग्राफ बनाना होगा तो हम कैसे बनाते हैं, देखिए what kind of this line किसके पैरेलल होगी, it will be parallel to x axis, parallel to y axis, will be parallel to both x and y axis and none of the above. तो इसके लिए आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूं। देखिए ये मैंने ग्राफ पेपर लिया एंड हियर लेट दिस पॉइंट इज this is x axis and this point is at this point is 1 2, मैं देखिए x is -1, x is -2, that is -3, that is -4। यहाँ पे एक हम ग्राफ बनाएंगे और ये जो ग्राफ है देखिए ऐसे बनेगा, दिस इज द ग्राफ। और ये कैसा ग्राफ है, दैट इज x इज इक्वल टू -4। तो इस लाइन को आप नाम दे दीजिएगा x इज इक्वल टू -4। यस, तो अब आप देखिए कि ये जो लाइन है x इज इक्वल टू -4, ये किसके पैरेलल है, this is parallel to this line and this line is y-axis. So what is the answer here? तो इसका आंसर क्या हुआ, ये जो लाइन है ये लाइन किसके पैरेलल होगी, this line will be parallel to y-axis and B is the correct option in this case. I think it is clear to you. If in the equation 2x plus 3y is equal to 10 and the value of y is 0, then what will be the value of x? Very simple question. यहाँ पे y की वैल्यू, ये इक्वेशन हमें दे रखा है, देखिए इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 10, 2x as it is और y की जगह आप 0 पुट करिए, रिप्लेस y by 0. So 2x plus 0 is equal to 10 because 3 into 0 is equal to 0. So 2x is equal to 10. So x is 10 by 2, that is 5. So the value of x is 5. And we can mark the answer. This is 5. So D is the correct option. One equation of a pair of dependent linear equations is 2x plus 5y is equal to 3. The second equation will be, यहाँ पे एक जो वर्ड है वो है that is डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मीनिंग ये होता है कि जो टू लाइंस होंगी वो दोनों ही कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, मींस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा। मैं एक आपको इसका एक ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूं। मान लीजिए कि एक लाइन ये वाली लाइन है, राइट,
और सेकंड लाइन है किसी भी इक्वेशन में, सेकंड भी यही लाइन हो, देखिए ये सेकंड लाइन है, ये दोनों सेम ही लाइन है। जब दोनों सेम लाइन होती है, जब इन दोनों लाइंस को हम कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। और कोइंसिडेंट लाइन का मीनिंग ये हुआ कि दे आर डिपेंडेंट लाइंस एंड डिपेंडेंट, दे आर फॉर्मिंग डिपेंडेंट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। और डिपेंडेंट के लिए मीनिंग ये हुआ कि उनका जो सॉल्यूशन वो होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ध्यान दीजिए, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमें चाहिए वी नीड a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए, आप इनको ऑब्जर्व करने के बाद देखेंगे कि मैंने एक इक्वेशन, एक तो पहले से ही इट इज ऑलरेडी गिवन, द वन इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन एंड दिस इज दिस, ये पहले से दे रखा, और मैंने ऑब्जर्वेशन से इसको कंसीडर किया नहीं। अब इनके रेशियो हम चेक करते हैं, तो 2 अपॉन, दैट इज 2 अपॉन a1 अपॉन a2, that is 2 upon 10 1 by 5, b1 upon b2 that is 5 by 25, that is also 1 upon 5, and c1 upon c2 that is 3 upon 15, that is also 1 by 5. It means a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 किससे है? Then when we take the second equation, this equation, जब हम इस इक्वेशन को लेंगे तो ये दोनों ही इक्वेशन से, जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस है, इनसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा। दैट इज व्हाई दिस टी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमेशा ध्यान रखिए, फॉर द डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस द सॉल्यूशंस विल बी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एंड द कंडीशन विल बी this a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2 should be equal to c1 upon c2. If 2x plus 3y is equal to 12 and 3x minus 2y is equal to 5, then we have to find out the value of x and y. अगर 2x plus 3y 12 है और 3x minus 2y 5 के इक्वल है, तो x और y का वैल्यू फाइंड आउट हमें करना है। देखिए, हम दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं, ये दैट इज ट्वाइस ऑफ x ये फर्स्ट इक्वेशन, 3x माइनस 2y ये सेकेंड इक्वेशन। ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम कि कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेटिंग मेथड यूज करते हैं। कोएफिशिएंट को इक्वल कैसे बनाएं, इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। देखिए, ये जो 3 है, ध्यान दीजिए, ये जो 3 है x का, इसको इस पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाय 3। देखिए, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, और ये जो x का कोएफिशिएंट है 2, इस पूरे इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से। सो ये मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू 36। देखिए, 3 into 2x that is 6x, 3 into 3y 3 3 जा 9y, 3 into 12 that is 36. Similarly, 2 3 जा 6x minus 2 2 जा 4y is equal to 5 2 जा 10। ये इक्वेशन आप थर्ड लिख दीजिए, और ये इक्वेशन आपका फर्स्ट था और ये आपका सेकंड था। अब क्या करते हैं कि वी सब्ट्रैक्ट ये जो आपका इक्वेशन है, इसमें से आप इनका साइन चेंज, जब सब्ट्रैक्ट करना हो तो साइन चेंज हम कर दें। देखिए, ये प्लस है तो ये किया हमने माइनस, ये माइनस है तो किया हमने प्लस, और ये प्लस है तो किया हमने माइनस। ऐसा करने से प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल,
and 9y plus 4y, that is 13y. 36 minus 10, that is 26. So y is equal to 26 by 13, that is 2. So the value of y is 2. y की वैल्यू के आने के बाद हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। इसमें से पहला जो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। देखिए इक्वेशन फर्स्ट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसमें y की जगह 2 रिप्लेस कर दीजिए, 2x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू y, बिकॉज क्योंकि हमारे पास पहले द वैल्यू ऑफ y इज 2, so twice of x plus 6 is equal to 12. Twice of x is 6, it means x will be 3. So x is equal to 3 and y is 2 is the answer here. x का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू 3 होगा। x is 3 and y is 2. So x is 3 and y is 2, that is C is the correct option. यहाँ पे x is equal to 3 है और y का वैल्यू 2 है। देखिए ये वाला, so you can mark C as the correct option. The pair of equations, that is y is equal to 0 and y is equal to -7 has one solution, two solutions, infinitely many solutions or no solutions. दोनों में देखिए x वेरिएबल नहीं है, तो you can do it that the two lines will be parallel. इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक ग्राफ आपके लिए बनाता हूं। देखिए ये रहा इसका ग्राफ। You will see here that is x-axis and the equation of x-axis y is equal to 0. This is y-axis and let this is the value of y here is -7. So this is the line represented by y is equal to -7 and the x-axis is the line represented by the equation y is equal to 0. आप बताइए कि ये दो लाइन कैसी लाइन है? क्या ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस हैं? और जब ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं तो आपको पता है कि क्या आंसर आता है, then there is no solution because the two lines are parallel, they will never intersect. The two lines will be parallel, they will never intersect. So the solution will be, there is no solution at all. So you can mark D as the correct option. If x minus y is equal to 2 and 2 upon x plus y is equal to 1 by 5, then what will be the value of x and y? इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इज x minus y is 2, this is equation number 1 and क्रॉस मल्टीप्लाई करिए सेकंड वाले को, सो x प्लस y दैट इज 10। कैसे किया देखिए, x plus y multiplied by 1 that is x plus y and 5 multiplied by 2 that is 10. So first equation is x minus y is equal to 2 and second equation is x plus y that is equal to 10. अब दोनों में आप इन दोनों को सॉल्व करने के लिए what you do, you add, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए x plus x, first equation is x minus y is equal to 2. Second equation is x plus y is equal to 2. This is first and second. ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू है, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल एंड x plus x twice of x, 10 plus 2 12. So x is equal to 6. So value of x is equal to 6. अब हमें y का वैल्यू डिटरमाइन करना है। किसी भी इक्वेशन ले लीजिए नाउ,
x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें x की जगह 6 पुट करिए, 6 माइनस वाई is equal to 2, y is equal to 6 minus 2. So the value of y is 4. So x is equal to 6 and y is equal to 4. Answer yes. ये जो पार्ट है देखिए, ये x is equal to 6 and y is equal to 4. Here C is the correct option. Mark C as a correct option. X is 6 and y is equal to 4. The pair of equations, that is x is equal to -6 and y is equal to -5, graphically represent lines which are, ये जो टू लाइंस बनेगी, x is equal to -6 को जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे और y is equal to -5 को जब रिप्रेजेंट करेंगे, तो किस तरह की लाइंस बनेगी? ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, लेकिन किस पॉइंट पे करेंगी, हम इसका कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसके लिए मैं पहले एक ग्राफ आपके सामने ड्रॉ करके बताता हूं, और ये रहा आपके सामने ग्राफ। अब इन दोनों पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना। देखिए, पहले है x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6। देखिए, ये रहा x, और ये x इज -1, -2, दिस इज -3, -4, -5, और ये -6। तो ये हमें x इज इक्वल टू -6 को रिप्रेजेंट करेंगे, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी x is equal to -6, this one, right? अब जो सेकेंड इक्वेशन है, दैट इज y is equal to -5, तो ये y is equal to -5 रिप्रेजेंट करेगी। ये देखा, ये रहा y is equal to -5, और जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये रहा y is equal to -5। We can write here x is equal to -6, ये इसका ग्राफ है, और ये जो लाइन है ये वाला, ये है y इज इक्वल टू -5। दो आपके पास लाइंस हैं, लेकिन इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, देखिए कहां पे है, ये रहा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस वन, दिस पॉइंट। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है -6। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -6 एंड -5। एक्स है यहाँ पे -6 और वाई है यहाँ पे -5। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, द कोऑर्डिनेट is -6, -5। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, और किस कोऑर्डिनेट पे करेंगी, -6, -5। सो आई थिंक यस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये रहा, दैट इज -6, -5। सो B is the correct option. I think it is clear to you. Two lines are given to be parallel. दो lines हैं जो आपस में parallel है। The equation of one of the two lines, इन two lines में से एक line का equation 3x minus 2y is equal to 5 है। तो second line का equation क्या होगा? Here the lines are parallel. तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, आपको पता होगा। देखिए, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती है a1/a2 is equal to b1/b2, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 is equal to b1/b2, but will not be equal to c1/c2 for the parallel lines, for the no solution, for inconsistent। inconsistent का मीनिंग भी होता है no मीन्स solution। तो आप इसमें देखिएगा कि एक लाइन पहले से ही हमें दे रखा है 3x। मैं थोड़ा इसका कलर डार्क करता हूं।
यस, वन लाइन ऑलरेडी गिवन, पहले से गिवन है 3x माइनस 2i इज इक्वल टू 5। अब हमें चाहिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन है, इस पे एक बार देखिए, ये मुझे लगता है, मैं इसको एक बार चेक करता हूं। ये ऑब्जर्वेशन से आप फाइंड आउट कर लेंगे। और मैं इसको लिखता हूं -12x प्लस a2i इज इक्वल टू 7। मैं a1/a2 मैंने चेक किया, दैट इज 3/-12, दैट इज -1/4। b1/b2 है -2/8, दैट इज ऑल्सो -1/4। एंड c1/c2 भी मैंने चेक किया, दैट इज 5/7। सो यस, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन c1/c2 नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, बट c1/c2 नहीं है। देखिए कैसे, यू सी हियर, आप यहाँ पे देखिए a1/a2 इज -1/4, b1/b2 is also -1/4, but c1/c2 is different from -1/4. So it means we can say that yes, a1/a2 is equal to b1/b2, but not equal to c1/c2 when we take the second equation this. अगर हम सेकेंड इक्वेशन ये लेते हैं तो ये कंडीशन में सेटिस्फाई करते हैं। दैट इज वाई C is the correct option, and you mark C as correct option. That's all, students. That's all. Thanks you all. Please keep watching. Thank you.